Hello children, good morning. Jai Swaminarayan. My name is Pravina from Atmi Green School and I'm going to teach you science. So in our last virtual class, we have completed the revision of the plant reproduction. So now it's time to start our fifth chapter, framework of the body, for revision. Okay, so here in this chapter, see, so the science words to know are a skeletal system, voluntary muscles, ball and socket joint, shoulder, involuntary muscles, pivot joint, spinal cord, cardiac muscle, gliding joint, ligament, hinge joint, and the calcium. So these are all the important words that you are going to learn in this chapter along with the meanings. Okay, so now here let's continue our chapter. Sorry, let's start our chapter. So if you stand in front of a mirror and look at your image, what do you see? Your body has a definite shape. You can easily walk around, jump or swim. So अगर आपने मतलब कि हमने अगर शीशा में देखा तो हमें क्या दिखेगा? हमारा पूरा बॉडी दिखेगा और पूरा अलग अलग शेप में, मतलब एक एक जैसे कि बोन है वो, जैसे कि नोज है वो अलग होगा, जैसे ईयर्स है वो अलग होगा, मतलब कि अलग अलग पूरे हमारे बॉडी के पार्ट्स है वो पूरे डेफिनेट शेप में अरेंज होकर है. सो यू कैन इजीली वॉक अराउंड, जंप और स्विम. सो हैव यू एवर थॉट what gives your body a definite shape or allows you to move from one place to another? So that's nothing but called as our skeletal system. So because of our skeletal systems of the bones arrangement, then only we can be walk or jump, swim, whatever the action that we want to do, we can easily do with the help of the skeletal system. Okay, so now here functions. So there are 206 bones of the different shapes. तो हमारे पास अभी मतलब कि 206 bones है, वो भी different different shapes and the sizes अलग अलग है उसके. जैसे कि the bones join together and form a skeletal system. तो एक वो मतलब कि ये सारे bones को join होकर है, तो then only we will call that as a skeletal system. Otherwise we should be called like as an only just a bone. Okay, so whenever the complete मतलब कि बहुत सारे bones मतलब कि एक दूसरे के साथ joint होकर है, तो then only we will call as a skeletal system. Okay, so it is your skeleton that gives a definite shape and protects your whole body. It supports the body and allow it to move. तो मतलब आपके जो skeletal system है वो एक definite shape देता है हमारे body को, and same like as that way and protects also. So like protects means जैसे कि skull है तो आपको brain को protect करेगा, अगर rib cage है तो lungs और heart को protect करेंगे, अगर वही जैसे कि हाँ वर्टिब्रल कॉलम है तो आपको स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा. मतलब कि इस तरीके से हमें जो सारे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हुए रहेंगे हमारा स्केलेटल सिस्टम. So it supports the body and allow it to move from one place to another place. So here certain bones protect the soft and the delicate organs of the body, like, so that is what I am explaining previous here. So the skull protects the brain and the rib cage protects the heart and lungs and the backbone protects the spinal cord. Okay, so these are all the internal organs that we are going to protect with the help of our skeletal system. Okay, so here the framework, the human skeleton is made up of the skull. Okay, so number one is skull, backbone, rib cage, upper and the lower limbs, shoulder and the hip bones. Okay, so these are all मतलब कि ये सारे पूरे joint होकर पूरे रहेंगे तो तभी हम skeletal system बुलाएंगे, otherwise we should simply called as an bones. Okay, so skull, it is here in I mean above the forehead, and the backbone means nothing but the vertebral column that is present in your back side from the below the skull to it extends up to the hip bone. Okay, so next is the upper and the lower limbs, that nothing but called as an hands and the legs, and the shoulder bone, so that means here it present in the back side of the chest, and the hip bones, it is present on the hip side, that means here the waist. Okay, so these are all the bones that connects and joins together and we called as an human skeleton. Okay, so here
the skull is made up of 22 bones. So total remaining जो skeletal system है मतलब वो पूरा हमें 206 bones से हमें divide किया है. So here वो हम उसको segregate करके I mean उसको separate करके हम पढ़ेंगे. जैसे कि skull 22 bones दे रहा है तो अगर मतलब backbone 33 bones दे रहा है तो बाकी के जो bones है वो single जैसे कि upper limbs में हमें कितने हैं lower limbs में कितने हैं ये सारे अभी हम उसको निकाल के पढ़ेंगे. Okay, so here the first one is here the skull is made up of 22 bones. Okay, so in this 22 bones also again it is subdivided into 14 bones are present in the face and remaining 8. Okay, so and the remaining 8 are present at the back side of the skull. Okay, so here so these bones are flat, so they join to form a round structure supported by the backbone, and this skull gives protection to the brain. So here so can you see in this picture the facial bones of here the skeleton. तो यहाँ पे हमें जो फेस में हमें 14 बोन्स जैसे कि दिख रहे हैं, जैसे कि हमें मतलब कि नोज का ये जो बोन हो गया है और आइज का और ये जो यहाँ का जो साइड चीक बोन्स है वो हो गए हैं और ये जो लोअर जा का जो मैंडिबल है तो वो हो गया है. तो ये सारे हमें ये सेपरेट सेपरेट ये जो सारे सेपरेट बोन्स है जस्ट लाइक अभी जो 14 बोल रहे हैं वो अलग अलग क्या बोन्स है वो हम वी आर गोइंग टू लर्न इन your higher standard, so no need to study here right now. So here just you have to keep it in your mind like 14 bones are present at the face and 8 at the back. So here these bones are all flat, they join to form a round structure. So why? Because our skull is a round. Why? Because our brains also support in that skull. So because of that brain, so the skull position also be like flat. Okay, so here the joint to form a round structure supported by the backbone, so the skull gives protection to the brain here. So in this backbone, so it is made up of a 33 bones like cervical vertebra, thoracic, matlab I mean it is subdivided into, yes, in this 33 bones it is subdivided into a five main things like cervical vertebra and the thoracic, lumbar, sacral and the caudal. So it is finally subdivided into the 33 small bones into 5 subdivisions. So in this 5 divisions also the cervical kit contains the 9 bones and the lumbar contains 12 and the cervical, thoracic, lumbar, so lumbar it contains again 9 and the sacral it contains 4 and the caudal it contains 2. So इस तरीके से हमें again वो subdivision किया गया था like here. So you can see here, so 1 2 3 4 5 6, so up to 6 7 8 तो up 9. तो यहाँ तक हमारा ये हो गया है. ये सारे जो neck bones है we called as an cervical bones. So I can draw here so that you can easily understand. So here तो हमें यहाँ से लेकर okay, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये हमारा हो गया है सर्वाइकल पार्ट. ओके, एंड हियर जो सर्वाइकल के नीचे का आपका हमारा हो गया है थोरैसिक, एंड उसके नीचे हो गया है हमारा लुम्बार. Okay, so next here it's a sacral, and here it's a caudal.
ओके, सो सर्वाइकल, thoracic, lumbar, sacral, caudal, इस तरीके से इसको डिवाइड. ओके, सो नाउ हियर the backbone is made up of a 33 small bones. The bone protects the spinal cord, covers the skull and allows free movement of the body. Okay, so here, and this is a diagram of the backbone here. So now we are going to learn ये जो सब डिविजन है, जैसे कि अभी सर्वाइकल हो गया, थोरासिक हो गया, लुम्बार, सैक्रल एंड द कॉर्डल, ये सारे सब डिविजन्स भी हम पढ़ेंगे इन अवर higher standards. I mean maybe in the 6 or 7. And now here next is upper limbs. So upper limb, here you can see here the bones of the arm and the bones of the legs. So upper limb and the lower limbs में हमें खाली सिर्फ 2 bones और उसके जो nerves वगैरह सब कुछ चेंज होते हैं. देखने में तो हमें पूरा सेम एज इट इज वैसे ही दिखते हैं, जस्ट लाइक हैंड्स, लाइक हमें 5 फिंगर्स है और मतलब लेग्स में भी हमें 5 फिंगर्स है, हमारे पाम है और वहाँ पे टो है, ऐसे तो सेम मतलब जैसे अगर हमारा यहाँ पे एल्बो जॉइंट है तो हमारा लेग में नी जॉइंट है बोलकर हमें देखने में तो सेम दिख रहे हैं. सो कैन यू सी हियर ऑल्सो लाइक द बोन्स ऑफ द आर्म. So here this is a arm and this is a leg part. Okay, so and I mean this is a forelimb and this is a hind limbs. ओके, तो हमें देखने में तो सेम दिख रहे हैं बट इट इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट. द बोन्स इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट. तो अभी आप आई मीन जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट आपने किया है, मतलब बहुत सारे बच्चों का मुझे आ रहा है सब्जेक्ट एनरिचमेंट, तो जो बच्चों ने किया था तो उनको आई मीन वो पार्ट्स लिखते वक्त ही उनको पता चल रहा होगा कि बोन्स तो देखने में तो सेम दिख रहे हैं. लाइक यहाँ पे भी 2 बोन्स दिया है और यहाँ पे भी हमें 2 बोन्स दिया है, बट उसके नेम्स भी बहुत completely different है. Like in our hands it will be as an radius and the ulna bone here. So in our legs we should call as an tibia and the fibula bone. Okay, so now here, so let's start our, so I can rough it. Okay. So here upper limb we are going to study now. So here in our upper limbs our arms have several bones. तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि बहुत bones हैं. Like we have a pair of arms. The upper arm bone fits in a cup shaped structure formed by a shoulder blade and the collarbone. So collarbone ये है कि that's nothing but called as an clavicle. So can you see here, जैसे अगर आप शीशे में अपने मतलब कि मिरर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा एक हड्डी ऐसा दिखेगा कि मतलब यहाँ से, और सेम एज इट इज हड्डी आपको इस तरफ भी दिखेगा, सेम बोन. तो ये आपका हो गया है कॉलर बोन. ओके, सो दैट्स अनदर नेम कॉल्ड एज एन क्लैविकल. सो वो क्लैविकल को वो जो क्लैविकल को मतलब कि ज्वाइन करते हुए हमें हमारा जो हैंड का जो बोन्स है, आई मीन हमारे जो 4 लिम्स के बोन्स है वो ज्वाइन हुए होंगे. दैट मीन्स हियर जो आपके जो शोल्डर बोन्स है, जस्ट लाइक आपके बैक में है बोल रही थी, तो उसका और ये हमारा जो आगे का जो क्लैविकल का, ये दोनों पार्ट को हमें मिक्स करते हुए हमें यहाँ पे एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर सेम लाइक दिस हियर. ओके, एक कप शेप्ड का स्ट्रक्चर जो है वो आपको वहाँ पे फॉर्म हुआ है. जो ये हमारा जो ह्यूमरस बोन है, लाइक आई मीन आपका जो हैंड का जो आई मीन हैंड का जो ऊपर का बोन, लाइक हियर जो आपका ये जो बोन है, तो वो बोन का आपका बोन कैन यू सी हियर यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे बोन में यहाँ पे एक कप शेप्ड का आपको दिख रहा होगा. लाइक वेट आई विल शो यू दैट कि यहाँ पे देखिए आप ये जो कप शेप का है, तो वो ये जो राउंड शेप का है, जो ये कप शेप में जाकर ऐसे हमें इसको अटैच हो जाता है. ओके, सो दिस इज हाउ द जॉइंट इज गोइंग टू मेक इन ह्यूमरस. तो द क्लैविकल, okay, so I mean jo the clavicle or the collarbone and the shoulder blades join together with the join together
इन ह्यूमरस बोन। ओके, तो वो हमें वो ह्यूमरस बोन में जाकर मिल जाता है। देन ओनली इट विल बी रोटेट लाइक इज, वी कैन अप एंड द डाउन, मतलब कि अगर हम उसके हाथ को हम ऐसे उठा भी सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लाइक हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, हम कहीं भी किसी भी तरह से हम जाना हो तो हम वो अब इस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ह्यूमरस बोन, आई मीन not in the humerus, in the clavicle or the shoulder blade here. Okay, so sorry. Okay, so here, so once again we are going to read this. So upper limbs or arms have several bones. We have a pair of arms like 1 and the 2. That means a pair of arms, the upper arm bone fits into a cup shaped structure. Okay, so the upper arm bones fits into a cup shaped, so this is a cup shaped, see, like this is a C shaped. So can you see here, सी शेप्ड की तरह दिख रहा है ना। तो ये जो सी शेप्ड के स्ट्रक्चर में हमें जाकर जो शोल्डर ब्लेड से अटैच होकर और कॉलर बोन से भी अटैच होकर हमें हमारा जो ह्यूमरस बोन है वो जाकर हमें फिक्स हो रहा है। एंड द सेम लाइक एज दैट वे, सो सेम लाइक एज एन अपर लिम, तो सेम एज इट इज हमें लोअर लिम्स में भी मैच होगा, बट द बोन नेम इज डिफरेंट हियर। ओके, सो लोअर लिम्स आर द डक्ट्स आर सिमिलर टू द आर्म बोन, सो द थाई बोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन इन द होल बॉडी। जो थाई बोन है हमारा, जो आई मीन द नेम ऑफ द थाई, फीमर, जो हमारा जो फीमर बोन है वो उसको थाई बोन को हम बोलते हैं फीमर बोन। जो हमारा फीमर बोन है वो पूरा बॉडी को, हमारे जो होल बॉडी का वेट है वो मतलब कि उसके ऊपर सपोर्ट आता है, आई मीन वो सपोर्ट करता है पूरा बॉडी का वेट को हमारे, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन इन द स्केलेटल सिस्टम। सो हियर, सो इट सपोर्ट्स the weight of the whole body. The thigh bone, okay, fits into a same like as an upper limb, like the C-shaped structure formed by the hip bone. So उसमें भी हमें, so can you see here? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो ये जो बोन है, यहाँ पे जो राउंड जो बोन दिख रहा है आपको ये वाला, तो वहाँ ओके, सो वो जाकर हमें हिप बोन को जाकर सी शेप के स्ट्रक्चर में वो भी ऐसा ही जाकर वो फिक्स हो जाता है। देन ओनली वी कैन बी इजीली वॉक एंड रन एंड वी कैन स्विम एंड वी कैन प्ले एंड आई मीन वी कैन डू वॉट एवर द थिंग्स दैट we can do with our legs. Okay, so with the help of that C shaped structure bone होने की वजह से हमें वो होता है। So what about that another bones, like मतलब कि हम बाकी के bones हम इस तरीके से हम क्यों नहीं कर सकते, like हमारे जो fingers है, so same exactly हमारे fingers लेते हैं, तो ये हमारे जो fingers है only what is the function of that finger, मतलब कि हम इसका जो movement, sorry, what is the movement of the finger, तो हमें finger का जो movement है why it is just like मतलब कि अगर हम whether if it is closed then it is closed and whether if it is a open and the open, that means it's only a open and shut process। क्यों हम मतलब कि ऐसे मतलब कि घुमा नहीं सकते, मतलब आई मीन हम बैक को क्यों नहीं लेकर जा सकते या पूरा फ्रंट को मतलब ऐसा पूरा क्यों नहीं घुमा सकते, सेम लाइक एज दैट एज एन ह्यूमरस बोन, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट द जॉइंट इज डिफरेंट हियर। वो वहां पे सी शेप्ड स्ट्रक्चर में हमें इधर बोन जॉइंट नहीं हुआ है ताकि हमें ये पूरा घुमाए, ये यहाँ पे दूसरा जॉइंट है, तो इसकी वजह से इस जॉइंट का नाम अलग है। एंड द टू बोन्स ओनली द शी शेप्ड स्ट्रक्चर के जो जॉइंट में फॉर्म होते हैं दैट आर कॉल्ड एज एन बोन्स ऑफ द अपर लिम्स एंड द लोअर लिम्स। जो अपर लिम्स का भी जो ह्यूमरस बोन इन द फोर लिम्स एंड द फीमरस बोन इन द हाइंड लिम्स, आई मीन जो आर्म का जो बोन है, आर्म का जो ह्यूमरस बोन है वही शी शेप्ड स्ट्रक्चर में विद द हेल्प ऑफ द शोल्डर ब्लेड एंड द कॉलर बोन, एंड इन द लोअर लिम्स, हमें लोअर लिम्स में हमें खाली सिर्फ हिप बोन से जो अटैच हुआ है, सो सी शेप्ड स्ट्रक्चर का। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दैट सी शेप्ड स्ट्रक्चर देन ओनली वी कैन इजीली मूव आवर लेग्स। सो हियर, so the rib cage, so now we are going to start a rib cage. So can you see the picture of the rib cage? So here the whatever that you are seeing here, like here, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, so wait, I'm going to mark this one. So ये जो है, okay, जो ये और ये है,
these are nothing but called as an clavicle or the collarbone. जो आपको यहाँ पे, so if you touch your skin here, so you can be easily identify that the bone is that called as an clavicle. ओके जो ये बोन अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो वो बोन हमारा हो गया है हमारा क्लाविकल और द कॉलर बोन. ओके तो यहाँ पे जो नीचे आपको क्लाविकल को लगकर यहाँ पे जो ये जो बोन दिख रहा है आपको, okay so ओके जो इस शेप में जो ये बोन है, दिस बोन इज कॉल्ड एज एन स्टर्नम. ओके सो ये बोन का नाम है स्टर्नम, STERNUM. ओके ये बोन हो गया है हमारा स्टर्नम बोन. ओके तो ये हो गया है हमारा कॉलर बोन. कॉलर बोन और अ क्लाविकल. ओके चिल्ड्रन तो ये हमारा हो गया है कॉलर बोन एंड मतलब कि कॉलर बोन एंड द क्लाविकल. जो ये बोन हमारा है मतलब कि ये जो पीछे का नहीं, जो आपको डिस्क शेप में जो यहाँ पे दिख रहा है, वेट जो यहाँ पे ये जो डिस्क शेप्स दिख रहे हैं, ये इसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं, खाली सिर्फ आगे के बारे में बात कर रही हूँ. वो बोन हो गया है हमारा यहाँ पे जो आप हार्ड कर सकते हैं, सो यू कैन इजीली फील दैट बोन. सो वेन एवर दैट यू आर टचिंग इन बिटवीन योर चेस्ट, तो आपको वहाँ पे है स्टर्नम बोन. ओके तो ये स्टर्नम बोन को लगकर ही हमारे सारा रिब्स है अटैच होकर हैं. ओके सो द रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स. ओके सो 12 पेयर के रिब्स, हमारे जो रिब्स है वो स्टर्नम बोन को अटैच होकर है. सो दैट हियर दीज द रिब्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट बोन. आई मीन जो स्टर्नम बोन हो, ब्रेस्ट बोन, और बोथ आर सेम हियर. द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट एंड द बैक बोन एट द बैक. मतलब कि हमारा ये जो बैक बोन है, सो विच आई एम हाईलाइटिंग विद द पिंक कलर हियर, जो ये बैक बोन तक वो ये सारे ऐसे जो रिब्स है हमारे अटैच होते हैं. तो आगे की साइड में आकर आपको आया है स्टर्नम बोन, तो आपको सेम लाइक एज दैट पीछे की तरफ आपको आया है बैक बोन. ओके तो इन दोनों को हमारा जो बोन्स है, सो सेम लाइक एज हियर. तो सोचो कि इधर आपका बैक बोन है. ओके सो हियर आपका बैक बोन है, तो हमारे ये जो सारे रिब्स है इस तरीके से अटैच होकर है. ओके सो ये हमारा हो गया है स्टर्नम बोन. ओके तो यहाँ पे जो स्टर्नम बोन और यहाँ पे है हमारा बैक बोन, तो इसको इस तरीके से हमें पूरा अटैच होकर है बोलकर बता रहा है हियर. सो द लंग्स एंड द हार्ट आर द वेल प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. ओके सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट रिब केज, आई मीन नॉट द फंक्शन, व्हाट इज द what is need and what is helpful, I mean कौन सा इसका जो इंटरनल आर्गन्स है वो इसमें स्टोर होकर है, आई मीन वो इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, जो है वो है लंग्स एंड द हार्ट. ओके सो द लंग्स एंड द हार्ट आर द वेल प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. Okay so here the bones are living. So from tomorrow, and I'm going to start with that bones are living. Okay children, so if you have any doubt regarding this chapter, you can call me at the respective timings given to you by the admin. Okay then, thank you.